Good morning, students. Our today topic is the Compton effect. What is the Compton effect? It is strongly confirmed quantum theory of light that radiation have the particle nature, expect zero rest mass. In 1923, Compton bombarded graphite with a beam of X-ray of the wavelength lambda and found that the scattered X-ray contained two frequencies. First is original and the other is lower than the incident frequency, and this is known as the Compton effect. From the figure, we show that the experimental arrangement to observe the Compton effect. तो इसमें हमारे पास जो कॉम्पटन इफेक्ट में क्या है कि अगर हम फ्रॉम द फिगर अगर हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप करते हैं टू स्टडी द कॉम्पटन इफेक्ट, तो इसमें हमारे पास क्या है, जो इंसिडेंट रे है दैट कैन बी पास थ्रू द कॉलीमेटिंग स्लेट एंड देन कैन बी हिट टू द टारगेट। टारगेट पे हिट होने के बाद क्या है कि हमारी जो लाइट है वो क्या होगी, स्कैटर्ड हो जाएगी और जो हमारे पास डिटेक्टर है हम उससे उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इट मीन्स क्या है कि द डिटेक्टर विच कैन बी सेटअप एनी डिज़ाइन ऑफ द फाई मेजर the intensity and the wavelength of the scattered X-ray and the Compton derive the relation for the lower frequency or a longer wavelength using the quantum theory of radiation. According to the radiation contains the energy packets called the photon. Compton scattering between the photon and the electron assumed the initially at rest is an the elastic collision between the particles owing the law of conservation of energy and the momentum. The photon transfers some energy to the electrons and the scattered photon has a lower frequency. The electrons gains the kinetic energy and the recoils with the velocity v. The observed change in the frequency of the scattered photon is called the Compton effect. And also discuss with the डायग्राम। इसमें हमारे पास दो डायग्राम हैं। दैट इज फर्स्ट क्या है हमारे पास जो है दैट इज द Compton scattering and the second one is the vector diagram of the momenta and their components before and after collision. तो इट मीन्स क्या है, इसमें जो हमारे पास इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी हमारे पास क्या है, E इक्वल टू एच न्यू एंड द मोमेंटम इज एच न्यू बाई सी। इट मीन्स क्या है, हमारे पास एक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, स्कैटर्ड फोटोन है जिसकी हमारे पास एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू डैश एंड द मोमेंटम इज P इक्वल टू एच न्यू डैश बाई सी। जो हमारे पास रिकॉर्डेड इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी हमारे पास क्या होगी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर एंड द मोमेंटम इज पी वाई एम वी। अगर हम इसका वेक्टर डायग्राम फॉर्म करते हैं तो वेक्टर डायग्राम में हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास एंगल दैट कैन बी फॉर्म बाय द स्कैटर्ड फोटोन से है उसमें हमारे पास जो रिजोल्व होंगे वो क्या है, एच न्यू डैश बाई साइन फाइव एंड द दूसरी साइड हमारे पास क्या होगा, एच न्यू डैश बाई सी। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, जो एंगल हमारा रिकॉर्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो उसके साथ हमारे कंपोनेंट्स क्या आ जाएंगे, पी कोस थीटा एंड द पी साइन थीटा। तो इट मीन्स क्या है, अगर हमारे पास हम सपोज कर रहे हैं कि लेट द एनर्जी एंड द मोमेंटम ऑफ द इंसिडेंट फोटोन be h nu and the h nu by c. The energy of target electron is m naught c square, where m naught is the rest mass of electron. After collision, the energy of the scattered photon is h nu dash and the momentum is h nu dash by c. The initial and the final momenta and 0, that means P is equal to mv, and the final energy of the electron moving with velocity v becomes mc square, where m is value is m naught by under root 1 minus v square by c square. According to the principle of conservation of energy, h nu plus m naught c square is equal to h nu dash plus mc square. That equation is first equation. Using the principle of conservation of the momenta along the inertial and the perpendicular direction as shown in figure B. तो we have the equation, हमारे पास जो equations आएंगी वो क्या आएंगी, h nu by c plus 0 इज इक्वल टू एच न्यू डैश बाई सी कोस वाई प्लस एम वी कोस थीटा। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एम वी सी कोस थीटा इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कोस वाई।
नाउ सेकेंड इक्वेशन विद रिस्पेक्ट अगर हम साइन के अकॉर्डिंग करते हैं तो हमारे पास जो रेस्ट मास है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू क्या होंगी, 0 + 0 इज इक्वल टू एच न्यू डैश अपॉन में सी साइन थीटा माइनस का एम वी साइन थीटा इज इक्वल टू एच न्यू डैश साइन फाइव। दैट इक्वेशन इज थर्ड इक्वेशन। अगर हम इसका क्या करें, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो इट मीन्स हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर सी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर वी स्क्वेयर प्लस न्यू डैश स्क्वेयर माइनस का 2 न्यू डैश कोस फाइव। दैट इक्वेशन इज फोर्थ इक्वेशन। अगर हम फ्रॉम इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है ये वाली इक्वेशन, इसका अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, एम सी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच इंटू में न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नोट सी स्क्वेयर। आल्सो द स्क्वेयरिंग ऑफ दिस इक्वेशन, जब हम इस इक्वेशन का स्क्वेयर कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, एम स्क्वेयर सी की पावर 4 इज इक्वल टू एच स्क्वेयर न्यू स्क्वेयर प्लस न्यू डैश स्क्वेयर माइनस का 2 न्यू डैश प्लस एम नोट स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एच 2h m naught c square into me v new minus new dash. That equation is fifth equation. Now subtracting fourth equation from the equation fifth, so now the equation we get m square c square v c square minus v square is equal to 2h square new dash 1 minus cos phi plus का m naught square c 4 plus 2h m naught c square new minus new dash. Now the m naught square 1 minus v square by c square इंटू में c square माइनस v square इज इक्वल टू m नोट स्क्वायर c square। यहाँ पर हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वैल्यू m इज इक्वल टू m नोट स्क्वायर 1 माइनस का v square बाई c square। हम इस इक्वेशन को सोल्व करें तो हमारे पास जो इक्वेशन है सोल्व होने पर क्या आएगी, m नोट स्क्वायर c की पावर 4 इज इक्वल टू 2h स्क्वायर न्यू डैश इंटू में 1 माइनस कोस फाइव प्लस एम नोट स्क्वायर सी की 4 प्लस 2h एम नोट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, 2h एम नोट सी स्क्वायर इंटू में न्यू माइनस न्यू डैश इज इक्वल टू 2h स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस कोस फाइव। तो यहाँ से सॉल्यूशन अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, 1 अपॉन में न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू इज इक्वल टू h अपॉन में एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाइव। That equation is sixth equation. Now put the value nu is equal to c by lambda and nu dash is equal to c by lambda dash in equation 6. तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h by m नोट c 1 माइनस का cos फाइव। दैट इक्वेशन इज सेवंथ इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड द कॉम्पियन इक्वेशन एंड द क्वांटिटी h by m naught c is called the Compton wavelength of the scattering particle. For a electron, Compton wavelength hc यानी कि कॉम्पटन वेवलेंथ h अपॉन में m नोट c, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2.426 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मीटर। दैट इक्वेशन सेवंथ रिलेट टू द चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑफ द स्कैटरिंग एंगल एंड रेस्ट मास ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन। तो यहाँ से क्या क्लियर है, चेंज इन द वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंसिडेंट वेवलेंथ। तो क्लियरली क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ चेंज करस्पॉन्डिंग टू फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल, हम फाई की वैल्यू 180 लेते हैं तो इट मीन्स इक्वेशन सेवंथ से क्या क्लियर होगा, हमने एंगल्स लिए हैं फाई इज इक्वल टू 180, तो वन फॉर्मूला पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, दैट इज लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम नोट सी 1 माइनस का 1 माइनस तो इज इक्वल टू 2h बाई एम नोट सी स्क्वेयर। तो हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, दैट वैल्यू इज 4.852 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मीटर। अगर हम फाई की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है एंगल में 0 पुट करते ही 0, तो इट मीन्स हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या है, देयर इज नो स्कैटरिंग अलोंग द इंसिडेंट डायरेक्शन। इफ द एंगल इज फाई इज इक्वल टू फाई बाई 2, तो इट मीन्स हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या होगी, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम नोट c इज इक्वल टू 2.426 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मीटर।
अगर हम इसको एंस्ट्रॉम में चेंज करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 0.02426 ए एंस्ट्रॉम। Now clearly change in the wavelength delta lambda is same for the visible light and the X-ray. Fractional change in the wavelength delta lambda by lambda is much greater for the X-ray than the visible light by the factor about the 70,000. So Compton shift is not observed for a visible light energy. It means gamma rays and the X-rays mainly lose their energy by the Compton effect while passing through matter. Drawing the Compton equation, the electron is consider electron is a free. It was a reasonable assumption because many electrons in matter are loosely bound to their parent atoms. If the photons strike tightly bound electron, then the entire atom recoils instead of the single electron. So the equation 7th, m naught is replaced by the mass of the entire atom and the resulting Compton shift is too small to detect, and the Compton effect whose analysis evidence involved the energy analysis involve both energy and the momentum is stronger evidence for the photon concept। ये हमारा टॉपिक किसके ऊपर था, कॉम्पटन इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट में हम इसकी डायरेक्शन एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।